So, welcome everyone. Today we have one special guest and our beloved student, I will say, Gopal Maheshwari. He is recommended for Air Force from 1st AFSP Dehradun, and after multiple conference out, he got that opportunity and now he is going to join armed forces. So, Gopal, without wasting everyone's time, now this stage is yours. Feel free to share anything if you want. Make them everyone motivated and let's show your journey, whatever you have achieved throughout the journey, right? We will also take doubt at the last, so please everyone, please don't message in between. Let's listen as much as we can from Gopal so that we can learn more about him. So, Gopal, the first question, when you decided that you want to join armed forces, usse pehle, let them brief a little bit about your background, from where you are coming, what your father do, right? And from where you got that education. Continue. Yes, ma'am. So first of all, thank you so much, ma'am, for bringing me here on the platform. And I would like to start that as you told everything about my name. So in class 12th, I've done commerce. So no PCM background. And then thereafter, I went to Delhi University for BCom honors. And my father is a businessman. So Okay. I come from a Banya family in which no one is from like forces, paramilitary forces or police or something else. So even we didn't have any discussion. Like my elder cousins have been into some other fields like uh, doctor, engineer, lawyer. Gopal, if possible, can you increase your voice a little bit? थोड़ी सी कम आ रही है. Sure, ma'am. Continue. Yes, ma'am. So I made my mind in year 2023 Okay. because of a, because of a person who is currently serving in Indian Armed Forces. Okay. No other than Lieutenant Shivam Maheshwari. He, Okay, so so he our special guest is with us. So let's a huge round of applause. हम ऐसे ही बजा लेते digitally. We have Lieutenant Lieutenant शिवम माहेश्वरी with us, जो हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं. वो जानते हैं, मैंने उसकी जर्नी भी शेयर करी थी शिवम की, कि किस तरीके से उसने लास्ट तक हार नहीं मानी. एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु, कहते हैं कि यू शुड बी द लास्ट पर्सन हु कैन लूज होप ऑन योर सेल्फ. तो वही वाला था, लास्ट अटेम्प्ट इन एनसीसी, and he was got through the journey. So, Shivam, without wasting time, if you want to share anything with us, you are welcome. थैंक यू। मैं यहाँ पहले उसका इंटरव्यू कंप्लीट कर, फिर उसके बाद मैं आगे Okay, you कंटिन्यू have करूँगा। time. हाँ, मैं अभी बैटल फील्ड में मतलब वहाँ हूँ, Okay. फॉरवर्ड हूँ, तो अभी मेरे को ब्रेक मिला है, तो जस्ट अभी उसने बोला कि तो मैं आता। So, ladies and तो अभी gentlemen, पहले Shivam was the main motivation behind Gopal Maheshwari dreams. So, Gopal, what do you want to say about Shivam? मैम वो एक होता है ना रास्ता दिखाना या रास्ता बनाना मोर प्रिसाइसली यही है वो मतलब मैं तो सिर्फ मैं हॉलीडेज में घर आया हुआ था तब भैया भी यहाँ पे थे प्रिपरेशन कर रहे थे तो रेंडमली मैंने उनसे पूछा कि भैया स्पेशली कुछ जो बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए कुछ स्पेशली फील्ड आपकी लाइन में होती है फिर उन्होंने बताया कि एफकेट के थ्रू देयर इज अकाउंट्स ब्रांच फिर उन्होंने मेरे को और गाइड करा कि कैसे कैसे और एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है ही मोटिवेटेड मी और till that time from that time I'm just following him and as well as your guidance as well and Gopal, this is thanks a not lot your all. interview, so without speaking in English, तो हिंदी में भी बोल सकता है, ठीक है? It's fine. Yes ma'am. हाँ, So so फिर शिवम की कौन सी बात तुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है? मैम इंस्पायरिंग के लिए मैं कहूँगा तो एक तो डेडिकेटेड पर्सन है हार्ड वर्क मतलब उनके अंदर जो मैंने रेजिलियंस देखा है ना वो इन कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज का कि बैक टू बैक वापस जीरो से स्टार्ट करना और फिर दोबारा फाइट करना और उनकी जर्नी भी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है क्योंकि मैं उनको 12th मैंने को ये भी पता था कि उन्होंने एनडीए वगैरह दिया है कि वो बहुत टाइम से लगे हुए थे और इतने टाइम बाद अगर आपको जो चाह रहे हो मिल जाए ना उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता तो जब उनका रिजल्ट आया था तो वो मैं भी फील कर रहा था मतलब मेरी आंखों में भी आंसू थे कि हाँ फाइनली कुछ बहुत बड़ा अचीव हो चुका है और शिवम, जैसे शिवम के पास तो एनसीसी थी, तो वो रेजिलियंस फैक्टर तो आ जाता है ना?
ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ मिल जाती है, माइंडसेट वैसा फिक्स हो जाता है. सो गोपाल, यू डोंट हैव एनसीसी, सो यस दोज मैम. हु डोंट हैव एनसीसी उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि इजी होती है जर्नी, कैसे हम काम कर सकते हैं अपने फिजिकल फिटनेस पे, या क्या डिफरेंसेस यू फील इट? मैम एनसीसी वालों की तो बात अलग है, उनको तो बिल्कुल पक्का कर ही देते हैं. और मेरे हिसाब से रेजिलियंस आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितना अपने जो गोल है उसके लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो, डेडिकेटेड हो. मतलब एक टाइम ऐसा भी था 2023 में, जब मैं एफकेट का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, मैंने कम्प्लीटली 2 महीने के लिए अपना स्मार्टफोन रख दिया था और सिर्फ कीपैड वाले फ़ोन में सिम डाल के उससे ही काम चलाता था. नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग. तो ऐसे कन्फाइंड एरिया में रहना है का मतलब, और फिर घर वालों का भी होना, उसमें अच्छा अच्छा खाना पीना, मतलब सब चीज़ें एक सेफ एनवायरनमेंट में रह के तैयारी करना बहुत ही बढ़िया रहता है मेरे हिसाब से, तो जो कि मैंने करी है. ओके, सो रिटन से स्टार्ट करते हैं कि रिटन के लिए क्या क्या अप्रोच था गोपाल तेरा? मैम मेरा मैथ और रीजनिंग स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है, तो मेरा फोकस यही था कि जीएस में मेरे को वर्कआउट करना है. तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मतलब 196 स्कोर था, और वही मैं डेडिकेटेडली मॉक प्रैक्टिस करता था. क्लासेस ली थी उस टाइम कुछ कि भाई जो मेरे कंसेप्ट हैं वो ब्रश अप हो जाए. तो इसमें मैं रिटर्न में अच्छे स्कोर आ गए फर्स्ट अटेम्प्ट में 196. तो उसके बाद यही था कि अब तो रिटर्न में अच्छा है तो एसएसबी के लिए बहुत अच्छे से करना है. ओके, तो तब उस समय एक ग्रुप था टेलीग्राम पे, जर्नी टू अकेडमी. भैया ने ही मेरे को ऐड कराया था कि यार तू इसमें रह, इसमें प्रैक्टिस कर, यहाँ ऑलरेडी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी हैं और बहुत ही नॉलेजेबल और इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, इनके बीच रहेगा ना तो बढ़िया पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी. ओके, तो फिर करी, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हो पाया था. ओके, ठीक है. सो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. एंड गोपाल, व्हेन यू डिसाइडेड कि ठीक है मुझे बनना है, यू हैव दैट इंस्पायरिंग पर्सन इन योर लाइफ, देन हाउ यू डिसाइडेड कि यार अब व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस फर्स्ट अटेम्प्ट से लेके यहाँ तक, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या धक्के खाए, व्हाई हाउ यू लैंड अप इन दैट अंतिम पग एट लास्ट. सो वो जो पूरी ब्रीफ जर्नी है ना, वो जल्दी से बता दो. मैम फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में ऑलमोस्ट 1 साल 2-3 महीने का गैप है. फर्स्ट अटेम्प्ट वही नवंबर 2023 में था. सेकंड अटेम्प्ट मतलब एक अटेम्प्ट मैंने स्किप कर दिया था कि मेरा कॉलेज खत्म हो जाए, उसके बाद मेरा रिटर्न तो निकल जाएगा, बट मेरे को एसएसबी के लिए बहुत वर्कआउट करना है. उस टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैं फिट भी नहीं था, आई वाज ओवरवेट. मतलब हाइट के हिसाब से तो कुछ ज्यादा ही 75-74 था. एट और अभी प्रेजेंट कितना है? मैं अभी 66-67. ओह, दैट और इज ये डेडिकेशन. यस मैम, और ये मतलब ड्रास्टिकली जो वेट मैंने 1-2 महीने में ही गिराया, मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल करके, फूड पे भी और अच्छा खासा वर्कआउट्स वगैरह करके. सो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैम एसएसबी जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मतलब मेरे को मैं कुछ अच्छा प्रेजेंट ही नहीं कर पाया. साइक का वैसे नहीं पता लगता, जीटीओ में अंडर परफॉर्मेंस. इंटरव्यू में जीटीओ में क्या हुआ कि मैम आईओ जब मैं कर रहा था तो एक होता है डबल प्लेटफॉर्म, डबल ब्रिज, सॉरी, हाँ, डबल डिच. डबल डिच मैम, इन एयरफोर्स. ओके, यस मैम. तो आज से पहले कभी ऐसा कुछ करा ही नहीं था कि हाय इधर से कूदना है, ये रस्सी पकड़नी है. तो मैं उस पर चढ़ा और सिंपली उतर गया. उस दिन वो मैंने अपना वहाँ जीटीओ में इतना गड़बड़ कर दिया था कि लग रहा था गेम खत्म. तो सेम चीज मैंने इंटरव्यू में बोल दी. पता नहीं उस समय क्या हुआ, मैंने बोल दिया कि सर आई दिस टाइम आई डिस्क्लोज दैट आई हैव अ फियर ऑफ हाइट, सेम कॉन्फ्रेंस में. बट उसके बाद अभी अपने सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरा एसएसबी था फरवरी में 2025, इससे पहले मैं आफ्पा गया था. ओके, हाँ, जनवरी के मंथ में, कि नहीं यार इस बार जीटीओ के लिए और स्पेशली ये जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है इसमें मेरे को बहुत अच्छा करना है. इंटरव्यू वगैरह के लिए साइक के लिए बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है. ठीक है, चला गया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह भी कर ली. बट वही है कि आपने बोला था कि ना, इंटरव्यू एक ऐसा टेस्ट है जो गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. तो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था इससे पहले वाला, वो इंटरव्यू नहीं बिगाड़ा था कंप्लीटली. ओके, जीटीओ अच्छा था, मेरा दिख रहा था कि हाँ भाई अच्छे एफर्ट्स हैं. ग्रुप वाले बोल रहे थे. साइक का वैसे ही मतलब हल्का फुल्का ही आइडिया रहता है, पूरा आइडिया रहता. बट इंटरव्यू में तो मतलब क्लैरिटी थी ही नहीं लास्ट टाइम तक. मैं मतलब मेरे से पूछते कि फ्रेंड्स कैसे हेल्पफुल है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा था कि सर ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, मतलब कुछ उसके पीछे इंस्टेंसेस नहीं थे, स्टोरीज नहीं थी. मतलब बैकग्राउंड वो जो था ना, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, वो मिसिंग था. और उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि आपका डिफेंस ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, वो भी मैं अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था. सो बट अब जब से मैं 1 महीना मार्च में, भले ही सिर्फ 1 महीना ही टाइम था मेरे पास, बट आपने मेरे को ऐसे ग्रूम कराया, वो जो स्ट्रक्चर्ड आंसर होते हैं ना मैम, वो मेरे को इस बार इंटरव्यू में समझ आया कि हाँ, वो एक के बाद एक जो लाइन आती है आंसर्स में, वो कितनी इफेक्टिव होती है.
और आपने कहा था कि यार हाँ, आपने जो तुम भी कुछ भी अगर स्टेटमेंट दे रहे हो उसके पीछे की स्टोरी या एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। वही वो दिखाता है कि कितना ऑनेस्टी है या फिर कितना कभी हुआ भी है ये सब चीजें। हाँ तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से वर्क करा। तो इस मेरे को लगता है कि साइक का फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या हुआ नहीं हुआ, बट जीटीओ में और इंटरव्यू में अगेन मैम दिस टाइम इट वाज द बेस्ट टाइम। ओके। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है गोपाल का, कि गोपाल से पूछा था प्रीवियस अटेम्प्ट में व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। सो लास्ट वाला आंसर, बिकॉज व्हेन आई वाज टेकिंग वन ऑन वन इंटरेक्शन सेशन ना, जो इंटरव्यू में होता है, सो मैंने इससे पूछा ओके चल ये बता तूने लास्ट टाइम आंसर क्या दिया था। वो आंसर सुन के मुझे भी लगा कि यार एनडीए वाला बच्चा भी नहीं दे सकता होगा ऐसे। एंड देन गोपाल रियलाइज कि मैम अब मैं क्या करूं, मैंने लास्ट टाइम यही आंसर दिया। तो वो वाला इंसिडेंट बताना गोपाल, क्या हुआ था। सो मेरे से पूछते हैं ओके गोपाल, व्हाट इज द रीजन फॉर ज्वाइनिंग ऑफ आर्म फोर्सेस। मैंने बोला सर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। गोपाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, हाउ सो? अब मैं समय सोच के बैठा तो था हाउ सो कि क्या बोलूंगा, बट हिट ही नहीं कर रहा दिमाग में। सर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। विच एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज? सर हॉर्स राइडिंग। उसने कहा हॉर्स राइडिंग इन एयरफोर्स, फैंटास्टिक। और जब उसने कहा फैंटास्टिक मैंने कहा भाई यहाँ तो धागे खुल गए ये तो हो गया खेला। तो उसके बाद से तो वो ऐसा ग्राफ गिरा है ना, उसने मेरे को 3-4 बार ऐसा ऐसा फैंटास्टिक बोला। मैंने कहा भाई तू फैंटास्टिक के पीछे जो गालियां दे रहा है ना मेरे को, ठीक है, मैं बस मेरे को यहीं छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तो वो तो एक्सपीरियंस मेरे को मैम लाइफ टाइम याद रहेगा क्या हुआ था। बट इसलिए इस जब गोपाल ने मुझे बताया था ये इंसिडेंट, लिटरली आई वाज शॉक्ड कि गोपाल वाज लाइक कि मैम हाँ इंटरव्यू तो ठीक ही गया था, ये तो ठीक गया था। और फिर जब मैंने उससे पूछा कि ओके मतलब ये ना ये वाला एम वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको मोटिवेशन वाला, तो क्या दिया, तो गोपाल खुद हंस रहा था बताते हुए। एंड देन गोपाल टुक 2 to 3 डेज। एंड फिर उसने बोला क्योंकि गोपाल की फैमिली में चलो कोई नहीं है, बिजनेस फैमिली से आता है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट उसका मोटिवेशन तो है उसके आसपास की चीजें। देन उसने आंसर फ्रेम किया। सो नेक्स्ट टाइम आपने कैसे आंसर फ्रेम किया गोपाल। मैंने नेक्स्ट टाइम आंसर फ्रेम ऐसे किया कि जैसे मेरा कॉलेज, मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि सर मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद डिस्कवर करा, क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में दे दिया था अटेम्प्ट। हाँ तो फिर मैम आंसर मतलब रीजन वही है भैया, शिवम भैया, बट मैंने उसको एक स्ट्रक्चर ऐसे दिया कि हाँ मेरे को एनसीसी जो थी वो पता नहीं थी कि होती भी है। सेकेंड ईयर में जाके मेरे को पता लगी, बट सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर नहीं सकते थे, तो मेरा फर्स्ट मोटिवेशन वो था। और सेकेंड ईयर में मैं दिल्ली में है पालम एयरफोर्स म्यूजियम, मैं वहां पे विजिट करा किसी के साथ। एंड मेरे को रियलाइज हुआ अगर मैंने क्लास 12th में फिजिक्स पढ़ी होती तो मैं एक फाइटर पायलट भी बन सकता था। हाँ तो फिर मैंने डिसाइड करा कि फाइटर पायलट नहीं तो फाइटर कंट्रोलर ही सही, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, को पायलटिंग अ फाइटर पायलट इन डिफेंस ऑपरेशंस। yes. और मैंने उस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया अपने इंटरव्यू में, और वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह निकला। फिर 2 पॉइंट्स थे, एनसीसी फर्स्ट और पालम एयरफोर्स म्यूजियम सेकंड। और उसको दिख गया था क्योंकि एनसीसी अगर मैं बोलता तो वो बोलते कि व्हाई नॉट अदर लाइक आर्मी वगैरह, क्योंकि अभी तक मैंने एफकेट क्लियर करे दिए हैं, तो फिर एयरफोर्स का भी टच लाना था, तो मैंने इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके बोला। हाँ, और अगर शिवम वाला फैक्टर वो आर्मी के लिए जा रहा होता तो बहुत स्ट्रांगली आ जाता, वरना फिर ओके शिवम इज इन आर्मी तो एयरफोर्स क्यों आना है, तो वहां पे ग्रिलिंग हो जाती। तो इसलिए whenever you are giving any answer come back with why factor always, है ना। ओके सो गोपाल फिर से चलते हैं कि फर्स्ट डे स्क्रीनिंग वाला चीज कैसा हुआ, अभी तक कितनी बार स्क्रीनिंग प्रोसेस दिया है और कितनी बार स्क्रीनिंग हुआ है, और इस वाले में तूने ऐसा क्या किया था, हमारे जो भी लोग देख रहे हैं हमें और जाने वाले हैं, तो मतलब उनके लिए क्या एडवाइस देगा तू कि डूज एंड डोंट्स। मैम मैंने अभी तक 3 कॉन्फ्रेंस देखी है, मतलब 3 अटेम्प्ट दिया और तीनों ही कॉन्फ्रेंस है, एक बार भी स्क्रीन आउट नहीं हूँ। और स्क्रीनिंग का मतलब OIR मेरा नो डाउट टचवुड अच्छा रहता है क्योंकि रीजनिंग वगैरह अच्छी है। फिर स्क्रीनिंग के लिए मतलब मेरे को ये रहता है कि यार जो फोटोज है ऑलरेडी ब्लर होती हैं, मेरे को हाई फाई स्टोरी नहीं बनानी, बट हाँ मेरी स्टोरी जो होनी चाहिए वो पिक्चर के अराउंड ही होनी चाहिए। 3 और जितने कैरेक्टर्स है, खासकर आपने मेरे को वाली बात बताई थी कि अगर 10 कैरेक्टर है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 को पकड़ो, एटलीस्ट 5-6 को तो पकड़ो, कुछ उनका इफेक्टिवनेस तो दिखाओ कि अगर वो फोटोज में उन्होंने दिखाया है। तो मैम मेरे पिक्चर में 3 कैरेक्टर थे बट 2 ही एक्टिव थे, बट फिर भी मैंने थर्ड को लिया अपनी स्टोरी में कि नहीं यार मेरे को इसको पैसिव नहीं दिखाना, और बहुत ही नॉर्मल स्टोरी बनाई। और शायद ऐसी स्टोरी जो मैंने कभी प्रैक्टिस सेशन में नहीं बनाई हो,
और मेरी किसी से रिलेट ना करती हूँ, बट वो उस टाइम हिट कर गई मेरे को। प्रोफेशन हिट कर गया उस टाइम तुझे। वो प्रोफेशन ऐसा हिट कर गया कि, और जब मैंने पूरी स्टोरी लिख ली ना, मेरे को रियलाइज हो गया भाई ये तो किसी से मैच होनी ही नहीं है। तो वो तो वो होता है ना, जीडी में आप कहीं किसी किसी के साथ ग्रुपिंग कर लेते हो, हाँ। फ्रेंड्स आई एग्री, फ्रेंड्स आई डोंट एग्री, वो चीज तो होने नहीं वाली। तो मेरे को जीडी में सिर्फ लिटिल बिट से कंट्रीब्यूशन देना है, नरेशन बहुत अच्छे से करनी है। गुड। तो मैंने इसी चीज पर ध्यान दिया, नरेशन बहुत अच्छे से करी, एक्शंस बहुत अच्छे से लिखे, इमोशंस को शो करते हुए एक्शंस लिखे। तो मेरे को लगता है ये 2-3 पॉइंट्स। उसके अलावा जीडी में तो कुछ कंक्लूजन आ ही नहीं पाया। तो जीडी में बस ये था कि मेरे को ये नहीं दिखाना कि डोमिनेटिंग हूँ मैं, हाँ। जस्ट कोऑपरेटिव हूँ। तो मैंने इस अप्रोच से स्क्रीन इन दिया और मेरा हो गया। ओके, पिक्चर क्या आई थी? मैम पिक्चर ये आई थी, 2 लड़कियां, सिर्फ उनका फेस विजिबल था, आपस में बात कर रही हैं। उसके पीछे एक लड़की के पीछे एक पर्सन है, मेल है फीमेल भी नहीं कैटेगरी कर सकते हम उनको, और वो जिस उनको सुन रहा है। ओके। तो उसमें मैंने एक लड़की को बनाया पब्लिशर ऑफ अ बुक, और एक को बनाया ऑथर, और थर्ड पर्सन को बना दिया एडिटर, कि ओके, वो पब्लिशर के साथ आया है। ठीक है, तीनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। तीनों को कोलैबोरेटर। तो बस फिर उसके अराउंड एक स्टोरी बनाई कि बुक पब्लिशिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ा, अप्रिशिएट करा, लाइसेंस फीस भी थी। इसके अराउंड मैंने और क्या क्या टाइमलाइंस, इवेंट्स, इंसिडेंट्स जो थे सब कुछ अच्छे से, और नरेशन पर बहुत अच्छे से करी। ओके, सो पहला दिन हो गया कि तेरा चेस नंबर बोल दिया उन्होंने। नाउ Yes. यू हैव टू राइट सेम डे साइक। यस सो मैम। व्हाट वाज योर अप्रोच? पहले की साइक में अभी तक कैसा लिखा था, इस बार क्या डिफरेंट अप्रोच करी, साइक ने किस तरीके से तुझे मदद किया, एंड एट लास्ट जो लोग लिखने जा रहे हैं साइक, उनके लिए तू क्या ओपिनियन एंड एडवाइस देगा कि घर में ही कैसे प्रैक्टिस करना है? ओके मैम। साइक में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैट, और पहले मेरी टैट की अप्रोच सिर्फ एक हुआ करती थी, प्रॉब्लम आ रही है पहले उसको तो जमीन में गाड़ दो, फिर उसको ही निकाल के थाली में रख दो। अगर एक बंदा सही भी चल भी रहा है ना, तो मैं दिखा दूंगा कि यार उसके पैर में चोट लग गई है और मैं उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। पहले ऐसी अप्रोच हुआ करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस टाइम अगर पिक्चर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले जानी है, और अगर पिक्चर न्यूट्रल है तो भी पॉजिटिव ही ले जानी, मतलब नेगेटिव तो दिखना ही नहीं चाहिए। कुछ कुछ स्टोरीज में जैसे कि आप बोलते थे कि अच्छे थीम्स होनी चाहिए, अच्छे एक्शन होनी चाहिए, उसमें मैंने अच्छे से वर्क करा, बहुत अच्छी थीम बैंक्स बनाए, एक्शन उनके अराउंड लिखे, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या किस किस वे में मैं स्टोरीज को आपस में रिलेट कर सकता हूँ, सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ, वो सब चीजें सोची। बट कुछ स्टोरीज मैंने बहुत अच्छी लिखी थी वहाँ पे, जो मैंने कुछ स्टार्टअप्स का पढ़ लिया, इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ हैंडल्स हैं जैसे बेटर इंडिया, ब्रूट इंडिया, वो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स या फिर कुछ इनोवेशन हो रहा है उन सबको कवर करते हैं। मैंने कुछ कुछ वो लिखा जो मेरे को बिल्कुल पैसिव दिख रहा था, बट जिसमें कुछ ऐसा था कि यार कुछ सही समझ नहीं आ रहा ना, तो पर मैं नेगेटिव नहीं दिखा रहा था किसी में भी। और एक चीज इस बार मैंने और क्या करी, नॉर्मल स्टोरी है, सोशली मैं पता नहीं कैसे कैसे लोगों की हेल्प करता है, नॉट थ्रू एनजीओ, मतलब एज एन इंडिविजुअल लेवल पे मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। एक सिंपली स्टोरी मेरे को याद है, एक वुमन है, वो ना वेव ऑफ कर रही थी एक लड़के को, वो जा रहा था, तो मोस्टली हो सकता है बच्चों ने बनाई हो कि यार इसकी जॉब लग गई है लड़के की और ये जा रहा हो, मदर और चाइल्ड की। तो उस समय मेरे को लगा कि यार ये ना थोड़ी मोनोटोनस ना हो जाए, कि यार ये तो जनरल अप्रोच है। मैंने उसको कुछ और बनाया कि हाँ यार एक बंदा है कि उसने बीसीए करी है, अब वो क्या सोच रहा है कि अपने हॉलीडेज में टेक्निकल नॉलेज स्प्रेड करे। तो उसने नेबरहुड में जो सीनियर्स हैं उनको लैपटॉप की और स्मार्टफोन की नॉलेज देनी स्टार्ट कर दी, और वो इतने खुश हैं कि अब वो लोग उसको भी बाय करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस वगैरह जो है और इमोशंस जो है ना, खासकर इमोशंस, वो जस्टिफाई कर रहा था मैं इस बार टैग, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर वैट की बात करें, वैट में पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। नेगेटिव का मतलब मैं पहले सोचता था कि बस सेंटेंस बनाना है, कुछ भी बनाना है, बट इस बार मैम ने बताया कि भाई नेगेटिव को भी पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कैसे करना है। और नाउन की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप अपने स्टेटमेंट में अच्छे से मतलब रिलेट करवा रहे हो पीपल को, किसी और को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, या अपने जो आपका खासकर पीआईक्यू है उससे को रिलेट करके ही वैट लिख रहे हो, तो उसमें ऑनेस्टी दिखती है, और खासकर वो दिखता है, क्रिएटिविटी भी दिखती है कि आप एक वर्ड को अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे अलाइन कर रहे हो। तो वैट का ये था। देन टॉकिंग अबाउट एसआरटीज में यही था कि यार 3-4 एक्शंस लिख लिए और मेरे को एक सिचुएशन दे दी, तो मेरे को उसमें सेल थ्रू अ सिचुएशन वाला है, मेरे को ज्यादा उसमें डीप डाउन नहीं जाना, एक्शन बताने हैं और क्या बोलते हैं इमोशंस वगैरह हल्का फुल्का दिखा के उसको कवर अप करना है। और एसआरटी मैंने ज्यादा नहीं करी थी, एसआरटी मेरी 45 ही हुई थी, बट हाँ वैट मेरे 60 थे और टैट अच्छे से हो गया था। ओके,
तो ये मेरी और थी ये पूरी जो लोग अप्रोच। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देगा, कैसे प्रैक्टिस करनी है? मैम जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बढ़िया तो यही है कि किसी मेंटोर के या गाइडर के अंडर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज ऐसी हमें लगता है कि यार हम सही कर रहे हैं, बट जो बंदा एक्सपीरियंस है ना, या जो बंदा मतलब सिखा के आ रहा है या इसको ऑलरेडी रिकमेंड हो चुका, उसको कहीं ना कहीं पता है यार कि यार ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, और वो छोटी छोटी चीजें ना इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे वो और स्टोरी की कुछ चीजें एक जैसे मैंने तुम फ्रेमिंग लोगों हो, को कुछ बताई भी थी हो। वो भूल रहा है गोपाल, मैं बता देती हूँ। जैसे स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन डोजियर ओनली, ठीक है? बहुत लोग क्या यस गलती मैम। करते हैं कि वो लोग ब्लैंक पेपर पे लिख रहे होते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता है कि वो उनका राइटिंग स्पीड कितना है, कितना टाइम ले रहा है। सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, आपको एक एवरेज पता चल जाता है कि किसी भी स्टोरी के लिए अगर मैं फास्ट राइटर हूँ तो मैं 13 से 15 लाइन लिख रहा हूँ, अगर मैं स्लो राइटर हूँ तो मैं बेयर मिनिमम 8 to 10 लाइन लिख रहा हूँ। तो उस अकॉर्डिंग हमें हमारे एक्शंस, व्हाट लीड्स टू सिचुएशन और आउटकम पता चलने लगते हैं। तो अगर आप लिखना स्टार्ट हो गया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इतना टाइम बचा है मुझे, अब फाइनल एंडिंग करनी है या अभी भी एक्शंस लिखने। कंटिन्यू गोपाल। और जैसे मैम ने मेंशन करा डोजियर पे लिखना, अगर आप 2-3 टाइम डोजियर पे लिखते हो ना, ये चीज मैंने खुद विटनेस करी है, आपके 3.5 मिनट में स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को एक तो प्रैक्टिस हो जाती है, उसके अलावा एक पता लग जाता है यार इतना कंटेंट लिखना होता है, ये चीज मेंशन करनी होती है, तो ना वो टाइम फ्रेम दिमाग में भी साथ साथ चलता रहता है कि हाँ यार, और लिटरली हो जाती है 3.5 मिनट। साइड टेस्ट में मेरी आउट ऑफ 12 स्टोरीज में से ऐसा था कि हाँ 8 to 9 स्टोरीज 3.5 मिनट में खत्म हो रही थी। मतलब मैं 30 मिनट बाद तो सोचता था यार मैं स्टोरी सही तो लिखी है ना, इतना कुछ भी टाइम मिल रहा था कि हाँ एक वो होता है ना रिकॉल करने वाला, तो वो चीज पॉसिबल थी। वो एक दो स्टोरी में होता है कि हाँ लास्ट तक भी हल्का फुल्का कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। ओके, सो मेंटल स्टेमिना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल स्टेमिना गोपाल, स्पेशली फॉर एयरफोर्स के लिए जो जा रहे हैं, जहाँ पे आपको सेम डे एसडी वगैरह सब कुछ लिखना है, स्क्रीनिंग भी है, फिर साइक भी है, देन पीआईक्यू भी बैठ के भराते हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन? मैम मेंटल स्टेमिना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, बट ये मैंने कहीं सुना था कि आर्मी वालों को फिजिकल फिटनेस इतनी ज्यादा करते हैं, सिर्फ फिजिकली मतलब आर्मी वालों के जो इतने हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, वो जितने ज्यादा खुद को रगड़ा देते हैं उनका दिमाग भी उतना तेज दौड़ता है। एग्जैक्टली। तो मेंटल स्टैमिना के साथ साथ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्टैमिना, अच्छी डाइट होना भी बहुत जरूरी है। ओके, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। बिल्कुल क्रस्प में बता, मतलब क्रिस्प होके बताना कि तूने क्या डाइट प्लान फॉलो किया था, बिकॉज आई एम वेरी इंक्विजिटिव टुवर्ड्स नोइंग कि तूने मतलब 2 महीने में अपना ये वेट लॉस कैसे किया। मैम 1 महीना। 1 महीना? ओके, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, विद इन 1 मंथ। और इसके पीछे यार मुझे लगता है गोपाल, नॉट ओनली यू, तेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा होगा, है ना? तो वो कैसा किया? मैम स्टार्टिंग तो मैंने सिर्फ ये देखा था कि यार वेट लॉस कैसे होता है, तो चिया सीड से स्टार्ट किया था, ओके, और मॉर्निंग में कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के, तो ठीक है। 4-5 दिन खाया तो कुछ खास मतलब एक्सरसाइज रनिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दी थी, रनिंग कर रहा हूँ मॉर्निंग में 3-4 किलोमीटर, फिर जॉगिंग, फिर इवनिंग में एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, बट वेट उतना गिर नहीं रहा था। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं पता लगा कि भाई मिल्क तो पीना ही नहीं है, फैट होता है, और चिया सीड्स भी कभी कभी जब ओवर कंज्यूम कर लेते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, वो डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है, तो वो भी कभी कभी ब्लोटिंग कर देती है। हम्म। फिर एक अलग ही रूप आया मेरा, मतलब मीठा तो मैंने छोड़ ही रखा था, मेरी फैमिली में दिन में 2 बार मीठा खाया जाता है, और अब तो मैम 3-3, 4-4 बार, जब तो ओके। रिकमेंड होएगी, अब तो मैम मैं कहीं जाता हूँ अरे अब तो क्या सोचना भाई, खा खा। तो ऐसा होता है। तो मेरा डाइट प्लान अब क्या हो गया था, ओवरनाइट सोक करके जीरा सौंफ का पानी, ओके। सुबह रनिंग करके आया मैं, सबसे पहले उसको बॉईल करा के वो पीता था, फिर 1 प्लेट कुकुम्बर, ओके। फिर एक हाफ वाटरमेलन, ओके। वो मेरा ब्रेकफास्ट होता था। इस बार मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये दूध कॉर्नफ्लेक्स सब छोड़ दिए कि भाई मेरे को वेट मेंटेन नहीं। फिर आफ्टरनून में मैम मैंने खाई है बाजरे की रोटी, ओके। और वो ना सर्दियों में हम खाते हैं मक्का की रोटी, खाई जाती है, बाजरे की रोटी हल्की सी कड़वी होती है, ओके। मैंने उसको रोज खाया है मट्ठे के साथ, क्योंकि मैं बिना मट्ठे के उसको खा ही नहीं सकता, वो हैवी भी होती है, बट उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि फैट नहीं होता। ओके। फिर इवनिंग में मैंने कहीं देखा था कि ना वेजिटेबल सूप, खासकर पत्ता गोभी का सूप, ओके। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो बॉडी फैट खींचता है। और ये सब जो मेरा डाइट प्लान थी ना मैम, रोज आप मानोगे नहीं, 300 से 400 ग्राम मैं खुद गिर रहा था, क्योंकि मेरे क्या है हॉस्टल मतलब जो बिजनेस है वहाँ पे विंग मशीन है, तो मैं सुबह शाम रोज चेक करता रहता, मम्मी कहती थी भाई क्या हो गया, हो जाएगा हो जाएगा। तो डेली मेरा 300 से 400 ग्राम गिर रहा था मैम। तो ये सब मैंने रोज करा है,
इसमें मतलब मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी है, मीठा हो गया, अब इस समय मैंगो शेक का टाइम आ गया, वो सब छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। खैर इसमें फैमिली का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। मम्मी ने हर चीज प्रिपेयर करके दे दी, ज्यादा मेरे को फोर्स नहीं करा कि ये खा ले ये पी ले, नहीं ठीक है, मैंने बोल दिया था उनको ना कि भाई सेकंड को आऊंगा वापस, थर्ड को मेरे लिए मॉर्निंग में अच्छे खासे मैं पकौड़े खाऊंगा, ब्रेड पकौड़ा, आफ्टरनून में छोले भटूरे खाऊंगा, रात में दोस्तों के साथ सिर्फ बाहर का खाना खाऊंगा। और मैम वो चीज ऐसे स्टार्ट हुई है, 10 दिन हो 8 से 10 दिन हो गए हैं मैंने सिर्फ 2 दिन ही घर का खाना खाया है। ओ भाई साहब, तो so डाइट that is the reward you are paying yourself. यस मैम, बहुत हो गया, अब पत्ता बहुत हो गोभी, गया। अब तो चाउमीन है। ये बट मैम अब वेट बढ़ नहीं रहा ओके, एग्जैक्ट। हाँ सो लेट्स कम बैक। साइक हो गया, फिर किस तरीके से जीटीओ और इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। जीटीओ पहले लेते हैं। जीटीओ पहले हुआ था या इंटरव्यू पहले हुआ था गोपाल? जीटीओ मैम। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद जीटीओ की जीटीओ कैसा कैसा गया, कैसा ग्रुप था, कौन कौन से टास्क यू फील किया बहुत अच्छे गए, कहाँ यू समवेयर यू फील यू नो स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन ग्रुप में अच्छा नहीं रहा, कभी इस पूरे प्रोसेस में स्पेशली जीटीओ के सेल्फ डाउट आया क्या? सो अगर आया तो तूने किसको कांटेक्ट किया अपने ग्रुप में, कैसे फ्रेंड्स थे, कैसे फ्रेंड्स बनाए, एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इन जीटीओ? कंटिन्यू। मैम जीटीओ इस वाले अटेम्प्ट को बताना है पहले का भी? कंपेयर, यू कैन डू कंपैरिजन आल्सो। ओके सो गाइस, जीटीओ में तो जीडी से ही या जीपी से दिख गया था कि हाँ भाई ग्रुप बहुत अच्छा है, ग्रुप सुन रहा था एक दूसरे की बात, मतलब एक टाइम पे 2 लोग से ज्यादा बोल ही नहीं रहे थे। उसके अलावा मेरे को लग रहा था कि हमारे जैसे ग्रुप में 10 लोग थे ना, तो 3-4 लोग बिल्कुल पैसिव थे कि हो रहा है तो ठीक है, वो बस देने आ गए थे। तो और एक एज मिल गई थी कि यार अब तो 6 लोगों का ही कॉम्पिटिशन रह गया है। हाँ, तो जीडी में जैसे जो भी टॉपिक आया, मेरी सबसे पहले अप्रोच की रहती है बस बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, और वो फिर मैंने कुछ भी बोल दिया। टॉपिक था कि मैम आपको बताना मैंने रिवर सिस्टम के लिए कि हमारे रिवर इतनी पॉल्यूट क्यों हो रही pollute क्यों हो है। रही है? उसमें 3-4 लीड, जैसे इंफ्रा हो गया, रेगुलेशन हो गई, अवेयरनेस हो गई। मैंने उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टार्ट कर दिया, वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, फलाना ढमकाना। 2 मिनट में बोलता गया, तो उसको एक तो इनिशिएटिव दिख गया और एक ये दिख गया कि भाई इसको डर नहीं है जीडी का। फिर कॉन्ट्राडिक्ट स्टार्ट हुआ, बट उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ जेनरिक बातें नहीं करी, मैंने कुछ कुछ अच्छी अच्छी लीड्स भी दी, जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम बोल दिया। एक मैंने वो पढ़ा था स्टार्टअप टाइप ऑफ ड्रेन पाइप्स, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर, जो कि हम अपने घर में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ना, छोटी छोटी चीजें, ये आपको एक तो दिखाते कि भाई हाँ नॉलेज है, दूसरा कॉन्फिडेंस तो दिखाती क्या है, थोड़ा ना जो आप 3-4 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हो, उनकी मेंटेलिटी बन जाती है भाई बंदे में है कुछ बात। गोपाल, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहीं पे पूछना चाहूंगी। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, दे गो लाइक कि लेक्चर तो 3 मिनट का है, जीडी तो बस हाँ कि दूसरों का सुन के बोल लेंगे, इवन दो दे गॉट रिकमेंडेशन। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट यू नो नॉलेज इज आल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा था या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर लोग जैसे यू नो वीडियो सुन के चले जाते हैं, या देयर शुड बी अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज वेयर यू आर गैदरिंग? तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? मैम मैंने तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था, भले ओके, आपने बोला था बहुत बार, बट सॉरी। ओके। तो मैम पर हाँ अवेयरनेस तो भाई बहुत जरूरी है आसपास की, है ना। उसके अलावा जैसे मैंने कुछ कुछ चैनल्स बताए, इसमें आपको बहुत अच्छी थीम टैट की भी मिल जाएगी और नॉलेज पर्पस से भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फिर डिजिटल न्यूज़ पढ़ लो, कुछ अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट मिल रहा है, स्टडी IQ IAS दृष्टि IAS, इन सब पे अच्छे से इलेबोरेट करके सिखाते हैं, बताते हैं, वो सब देख लो, मतलब अवेयर रहो, क्योंकि यही आपको डिफरेंस क्रिएट करता है जीडी में खासकर। और फिर ना वहीं से एक माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है, वो मेरे को वहीं फील हो गया था जीडी में कि 2-3 बच्चे हैं और उनमें मैं भी हूँ जो लीड कर रहे हैं अभी से ही। तो न्यूज़पेपर मतलब अवेयर रहना, अब आप देख लो कैसे रहना है, न्यूज़पेपर से रहना है, डिजिटल न्यूज़ से रहना है, इंस्टाग्राम के थ्रू रहना है, यूट्यूब के थ्रू रहना है, जैसे भी रहना है रहो, अवेयरनेस मैटर्स। फिर मैम जीपी का टाइम आया, अब जीपी की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी, और फिर वही हर बार का होता है, बच्चे स्टार्ट कर देंगे प्लानिंग प्रॉब्लम से वो 2-3 बार प्रॉब्लम्स करते हैं, मैं सबको रोक के, जेंटलमैन वी आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एम। फिर वहां मैं वो स्पीड ब्रेकर लगा देता हूँ, फिर अपनी पूरी बात बोलता हूँ एम की, फिर फटाफट से उनकी प्रायोरिटीज भी बोल देता हूँ। अब वो प्रायोरिटीज के बाद में दोबारा एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, अगेन जेंटलमैन वी आर मिसिंग समथिंग, दैट इज रिसोर्सेज। और फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ, तो उनको दिख जाता है भाई ये ना मतलब एक होलिस्टिक वे में आंसर दे रहा है। तो फिर अब एक्शन में सबको आपस में बोलना ही होता है, फिर तब थोड़ा बहुत कोलैबोरेट कर लेते हैं। जेंटलमैन अगेन वी आर मिसिंग समथिंग, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। और मैंने लिटरली 3 बार बोला है, और फिर ग्रुप वाले सोच गए कि हाँ भाई तू बता तुझे कहना क्या है। तो
फिर अब मैंने जीटीओ का एक्सप्रेशन क्या था, मुझे ये जानना है। मैम जीटीओ मेरे पीछे बैठा था, मैंने उसको देखा ही नहीं। जीटीओ को मैंने इसीलिए पर वो एक्सप्रेशन एविडेंटली नहीं दिखे कि मैं रुको। जीटीओ को तो मैंने इस बार देखा ही नहीं अल्लाह, इस बार जीटीओ में तो पता नहीं मैम, मैं ना दिल से कूदा हुआ था, मैं आपको भी और बताऊंगा क्या क्या था। तो जीपी में ये हुआ, फिर लास्ट में भूल गए, अच्छा अच्छा हम ये सब ऐसा कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने कहा जेंटलमैन इवैक्यूएशन का प्रॉब्लम भी है, फिर मैंने 3-4 लोगों को इवैक्यूएट भी कराया कि हम इस रूट को पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर जब ओके मतलब पूछते हैं कि Nominate one कौन person. नॉमिनेट 1 पर्सन, चेस 30 चेस 30 चेस 30, मैं तो मुस्कुराया, ओके ओके ओके। फिर ओके फ्रेंड्स एज यू ऑल एग्री कैन आई। तो अच्छा जीपी में वाकई बहुत अच्छा हुआ, मैंने सब कुछ कवर करा, सब कुछ, बट स्टार्टिंग 6:30 टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, सो करेंटली टाइम इज 10:30, 4 घंटे आगे पहुंचा दिया। वो वहां से एक लड़का कहता भाई टाइम, मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा सॉरी फ्रेंड्स करेंटली टाइम इज 6:30। तो एक तो ग्रुप ने नॉमिनेट किया और तूने खुशी के मारे। पर मैम मैंने मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हर एक छोटी छोटी बात को। वो आपका एक आपकी मैम अप्रोच रहती है ना कि जो इन्फॉर्मेंट है उसको भी तो लेके जाओ भाई, वो भी तो रिसोर्स है। मैम वो किसी ने मेंशन नहीं करी, वो रिसोर्स में भी डाली मैंने, वो अपने प्लान ऑफ एक्शन में भी डाली मैंने, और उसको जस्टिफाई भी अच्छे से करा कि भाई जब तुम पहचान ही नहीं पाओगे तो पकड़ोगे किसको। एग्जैक्टली। तो वो चीज में मैंने इम्प्लीमेंट करी। तो मतलब मैम कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि भाई यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है। अब पीजीटी एचजीटी रह गया है, और जीओआर में तो मस्ती होती है। बस वही था कि जीओआर में जो रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नहीं पकड़ना। तो जीओआर अच्छे से हो गया था। फिर पीजीटी में तो आपको बताया ही था, फट्टा वाली लोग पकड़ रहे थे, मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर पर चढ़ के हाँ मैंने आइडिया देख लिया, लाओ दिखाओ सामान मैं करूंगा, सब पे ऐसे करा मैम। उसके अलावा क्या हुआ कि जैसे मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, कोई और अपना आइडिया दे रहा है, तो फिर मैंने कहा फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज टोटली वर्केबल, लेट मी इम्प्लीमेंट दिस। और नहीं सुन रहे ना मैम, तो मैं ऐसा नहीं कि पिछली बार तो क्या हुआ था ना मैम, वो चिल्ला गया था वाराणसी वाले बोर्ड में, फ्रेंड्स आई थिंक आई एम वर्किंग, मेरे को करने दो, ये करने दो। मैंने कहा ओके फ्रेंड्स, अब माइंडसेट। यस मैम। तो मैंने दिस टाइम कहा ओके फ्रेंड्स यू कैन वर्क आउट। मेरे को दिख रहा था वो करेगा ही नहीं, तो मैंने कहा फ्रेंड्स कैन यू कम बैक टू दिस अगेन। तो ऐसे करा है। उसके अलावा सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट वाला तो इजी होता ही है। अब आइडियाज मैं दे रहा हूँ, एक बंदा और था मेरे साथ, हम लोग ऑलरेडी वहां पहुंच जाते थे एंड लाइन पे। अब बीच में फंसे हुए लोग थोड़े कम बुद्धि वाले, अब उनको आइडियाज कम आ रहे हैं, मैं उधर से आइडियाज बता रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। तो अब जीटीओ ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जेंटलमैन डू यू वांट टू एक्सचेंज योर पोजीशंस। ओके। वो करते हैं मैम, जब उन्हें दिखता है कि हाँ इनको इवैक्यूएट कर, तो ठीक है मैं चला गया, 1-2 बार चला गया। उसके बाद तो क्या हुआ मैम, एक तो सिचुएशन ऐसी हुई कि ना मेरे को ग्रुप वाले बोलते हैं खुद कि फ्रेंड चेस नंबर दिस, आई थिंक चेस नंबर 30 शुड गो, चेस नंबर 30 शुड, मतलब कोई क्रिटिक हाँ प्रमोट करे देखते से क्रिटिकल सिचुएशन में ना, मतलब मेरे को डाल रहे थे कि हाँ भाई ये तो निकाल ही लेगा किसी तरह से, ये तो ऐसे कर लो। तो फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा, तो बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हमने चारों के चारों जो ऑब्स्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं सब करे, और लास्ट वाले में ना मैंने एक बंदे को ऐसे इवैक्यूएट करा है जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई हो। मतलब मैं स्ट्रक्चर पे चढ़ गया हूँ फ्रेंड्स, ऑफर टेक मी है, और पीछे वाले को बोल रहा हूँ अरे भाई पकड़ मेरे को, मैं डर नहीं रहा, तू पकड़, अरे तू आ यार, मैं हूँ निकल फ्रेंड्स आ। मतलब इतना मजेदार था ना मैम, बीजीटी तो हमारा एक नंबर। वो बस एक कॉन्फिडेंस होता है दैट इफ यू विन ट्रस्ट ऑफ योर ग्रुप ना, उससे अच्छी चीज कुछ नहीं होती है ना। Yes, तो वही ma'am. आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और वही आपको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो बहुत बार ऐसा मतलब मैंने खुद ने फील किया है कि आपके जीटीओ के टास्क ना आपके बंकर पे ही बनते हैं। कि अगर आप अपने डॉर्मेट्री में बहुत अच्छे हो सबके साथ, इफ यू रियली मेकिंग गुड फ्रेंड्स इंटेंशनली, नॉट टू शोकेस कि यार हाँ 2 दिन के लिए दोस्त बन गया, रे इंटेंशनली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग यू आर यू नो हेल्पिंग, डेफिनेटली वो आपके ना ग्राउंड पे चीजें दिखती हैं। ठीक है, आई रिमेम्बर्ड कि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे कमांड टास्क में लोग जाकर बोलते हैं कि मुझे बुला लेना, ये बुला लेना, बट मेकिंग जस्ट अ गुड फ्रेंड्स, यू नो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स कॉल्ड मी, आई फील लाइक कि मैंने तो इनका कुछ भी नहीं किया, इनडायरेक्टली बस आई हेल्प्ड कि ओके इंटरव्यू में किसी को कुछ नहीं आना थोड़ी मदद कर दी, इसमें कुछ नहीं आना थोड़ी इसको गाइड कर दिया। सो दैट इज वाई आपका जीटीओ के सारे टास्क अपने अच्छे दोस्त बनाओ, हो जाएंगे। कंटिन्यू। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ पीजीटी के बाद? मैम फिर जी और मैंने बता दिया, एचजीटी हुआ था उसमें वही सेम अप्रोच कि आगे बढ़ के खुद ब खुद मतलब कर रहा हूँ हेल्प इवैक्यूएट। सीटी में मैम मेरे को बुलाया सिर्फ एक ही बंदे ने,
ओके। बट वही था कि मतलब एक तो मेरे से थोड़े पतले लोग भी थे और थोड़े लंबे लोग भी थे, तो मैं समझ रहा था कि हाँ चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को डर था कि सीटी में क्वेश्चन से पूछते हैं। पिछली बार मेरे को मैम क्वेश्चन पूछा सहारनपुर में कुछ ऐसी चीज बताओ जो कि सिर्फ सहारनपुर वालों को ही पता है। अच्छा। अब मैम मैं सोच रहा हूँ कि क्या बताऊँ। फिर मेरी सुई खाने पे अटक गई। मैंने कहा सर एक ऐसी मिठाई है वो बाहर वालों को नहीं पता, सिर्फ हमें ही पता है, तो जब हमारे यहाँ कोई आता है हम उनको वो खिलाते हैं, और एक ऐसी आइसक्रीम है। इस बार मैंने सोचा था कि ये बोलूंगा अगर ऐसा कुछ आता है कि सर सहारनपुर के शॉर्टकट्स, अच्छा। वो तो बाहर वालों को पता नहीं होगा। बट सीटी में तो उन्होंने वही पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, और दो ही रीजन मैम, पहला एनसीसी और दूसरा पाला एयरफोर्स म्यूजियम। हम्म। मैम सीटी में उसने मेरे से एक सीटी था सबसे खतरनाक, दो लड़कों को दिया था, एक मेरे को और एक बंदे को और दिया था। तो मतलब वो देखना चाह रहा था कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं जाने की। तो वही आगे जाके फ्रेंड अब ये अनबाउंड हो गया है, यहाँ आप ये नहीं रख सकते, वो सब स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को और लग गया था कि हाँ भाई अब तो अच्छा हो रहा है। फिर मैम लास्ट में ना मैंने एक स्ट्रक्चर में दो आइडियाज निकाल लिए, एक और निकल रहा था वहां से। ओके। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, टाइम भी लगा था। तो उसने कहा जेंटलमैन डू यू वांट टू कम इन, मतलब अंदर आके देख लो, सोच लो आराम से। तो मैंने सोचा, तो आइडिया नहीं आया। मैंने कहा सर इट्स नॉट फीजिबल। तो जैसे मैंने बोला इट्स नॉट फीजिबल, तो उन्होंने कहा देख लो आर यू श्योर। तो उसने कहा ना आर यू श्योर, मुझे लगा भाई अब तो पक्का कुछ है इसमें, एक और निकलेगा। हाँ। वो मैम फिर वहीं से निकलता, वो सेंटर में से निकल रहा था ना, उधर से आइडिया आ रहा था ना उधर से, बट वो फिर वर्कआउट कर गया था। ओके। ठीक है। तो सो आफ्टर जीटीओ सब कुछ हो गया, लेक्चरेट। लेक्चरेट मैम अभी तक जितने लेक्चरेट करे हैं सबसे बुरा। अच्छा। मतलब एक तो इतना हल्का टॉपिक पकड़ लिया था क्रिकेट, और उसमें भी मैं क्रिकेट को आईपीएल में ले गया हूँ। बट मैंने डिफरेंस कहाँ क्रिएट करा, सब लोग आके स्टार्टिंग में जय हिंद फ्रेंड्स दे, मैंने सोच लिया था कि भाई मैं पहले एक प्रोवर्ब छोड़ूंगा हाँ। अच्छा खासा, वो इम्पैक्टफुल रहेगा, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी दिखाएगा और हाँ दिखाएगा कि यार डिफरेंस है कुछ और लोगों से। तो मैंने एक पहले प्रोवर्ब छोड़ा आते सारी कि क्रिकेट द ओनली स्पोर्ट इन द कंट्री विच इज लव्ड बाय 4-year चाइल्ड एंड 74-year पर्सन इज नथिंग एल्स बट क्रिकेट। ओके। तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया, क्रिकेट के बारे में बताया, फिर मैं आईपीएल के बारे में ले गया। तो मेरे ग्रुपमेट्स आज भी मेरी मजाक उड़ाते हैं, अच्छा भाई 27 करोड़ का तेरा ऋषभ पंत, मुंबई इंडियंस फेवरेट। लेक्चरेट तो मेरा वर्स्ट था, बट हाँ ये था कि वो जैसा होता है ना कि कंफर्मेटरी, तो ठीक था, बैलेंस्ड हो गया था, उससे पहले ऑलरेडी बहुत बैलेंस्ड हो चुका था। हाँ। ओके। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर इंटरव्यू के लिए क्या माइंडसेट था? एंड एज यू सेड लास्ट 2 to 3 टाइम्स जब से कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा था, समवेयर यू आर फीलिंग वेरी चैलेंज एज इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या करना है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन दिस टाइम इन योर प्रिपरेशन, इन योर माइंडसेट? यू वर काम, कितने घंटे तेरा इंटरव्यू चला, एंड व्हाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू क्या माइंडसेट था इस बार? मैम कंपैरिजन करूं तो लास्ट टाइम से और अब वाले में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। पिछली बार तो मतलब मैं बस ये था कि फॉर द सेक ऑफ जस्ट गिविंग द आंसर, मैं बस सिर्फ बात कर रहा था कि सर ऐसे, और वो भी इनकम्प्लीट आंसर जिनको बोलते हैं ना कि यार जिसका कुछ वो नहीं है, रूट्स नहीं है। आप एक स्टेटमेंट छोड़ रहे हो, उसके बाद बैकअप का तैयारी नहीं करा कि यार ये भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। इस बार मैम आपने जो स्ट्रक्चर करवाया था कि भाई हाँ ऐसे ऐसे CIQ पढ़ना है, फिर जो मेजर एरियाज हैं उसमें से क्या क्या फोकस करना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है, तो वो चीज मैंने वर्कआउट करा मैम। मतलब इंटरव्यू के लिए स्पेशली इस बार मैंने एक डायरी बनाई थी, और उसमें रफली मैंने 120-130 पेज भर दिए 15 दिन में, कि मैं एक छोटी से छोटी चीज भी, अगर वो बिजनेस की छोटी से छोटी चीज भी है ना, मैं बोलूंगा दोस्तों से रिलेटेड, वही उनके बारे में बैड गुड, उनके अकॉर्डिंग मेरे बारे में बैड गुड, हाउ आई हेल्प, हाउ दे हेल्प, क्रिटिकल सिचुएशंस इन विच टू बी टुगेदर फेस। उसके अलावा आपने बोला था एक फीमेल फ्रेंड को डालना है, वो भी डाला, उसके रिलेटेड भी सब कुछ लिखा कि हाँ भाई गुड बैड हाउ हेल्पिंग नेचर वगैरह। सो मैम और मैं बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जैसे इस टाइम मैंने क्या करा था ना कि क्वेश्चंस जो आ रहे थे ना उनका अपने पास टाइम से वैलिडेशंस दे रहा था। अब मैंने उनको बोल दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि सर मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग। अरे जब मैंने अगर करी नहीं होगी तो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है? मैंने आपसे डिस्कस करा था, तो आपने बोला कि इसको मेंशन कर, तो मैंने ऐसे पैराग्लाइडिंग फ्रेंड के साथ करी थी, बंजी जंपिंग भी करी है। उसके अलावा स्कूल टाइम में ट्रिप पे गया हूँ, क्रिस्टल वर्ल्ड की मेरे को जो वाटर राइड्स थी बहुत
थ्रिलिंग लगती थी, तो उनको दिख रहा था यार कहीं ना कहीं इसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, बट हाँ इसके अंदर एक वो ज़ील है हम्म, वो सब फेस करने की और मतलब फील करने की, जीना है इसको ऐसा कुछ ना। तो उसके अलावा मैम मैंने उसको अपना जो डिफेंस वाला क्वेश्चन ही था मेरे लिए मेन, कि वही मैं या तो मेरा गेम इन होगा या आउट होगा, कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। हाँ, तो उसने मेरे को पूछा कि ओके जेंटलमैन दिस इज ओनली द सिंगल रीजन। मैंने कहा नो सर, इट्स फॉर मी इट्स अ होलिस्टिक प्लेस अंडर वन रूफ, आई एम गेटिंग सो मच थिंग्स। मैम मैंने उसे 7-8 पॉइंट गिनवा दिए ओके, कि रिस्पेक्ट एंड लव भी है, पेट्रियोटिक फीलिंग भी है, फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर भी है, ये सब फुल जस्टिस टू एजुकेशन भी है, फाइटर कंट्रोलर बनने का मेरा ड्रीम भी है, बहुत सारे पॉइंट गिनवा दिए। तो मैंने उससे ना मतलब अपने आंसर से ना उसको चुप करवा रहा था। ओके। ग्रिल तो इस बार हुआ ही नहीं। उसको कर दिया उल्टा। अरे मैं हाँ उसने मेरे को एक तो जगह पकड़ लिया। ओके, कहता कि अब जब सब कुछ आ रहे थे आंसर तो टेक्निकल, एक तो मैम वो सीडीएस वाली बात पे ही, गोपाल आपका 3 बार से एफकेट निकल रहा है और वो भी इतना अच्छा स्कोर, आप सीडीएस नहीं निकाल पा रहे हो। हम्म, फिर प्लस मैंने मेंशन किया था कि मेरा कैट में 86 परसेंटाइल आया है, तो आपने कैट भी क्लियर कर लिया, फिर भी आप सीडीएस नहीं कर पा रहे। मैंने सिंपली सर सीडीएस में जीएस होती है, जीएस मैंने 10th के बाद पढ़ी नहीं है, तो सर नहीं निकलता, बट इस बार मैं श्योर हूँ। और मैम क्या हुआ, इंटरव्यू से पिछले दिन ही वो रिजल्ट भी आ गया था सीडीएस का। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि भाई मैं देखूंगा ही नहीं, पूछेंगे तो कहूंगा सर अभी चेक ही नहीं किया, याद ही नहीं था नंबर, कॉन्फ्रेंस में देखते हैं जो होगा तब की तब। तो मैम वो वहां से कवर हो गया जो डर था कि हाँ जीएस वाला। फिर उसने मैम स्टार्ट करा ओके जेंटलमैन ऑन विच प्रिंसिपल रडार वर्क्स। ओके, तो मैम मेरे को नहीं आता था, तो मैंने सिंपली बोल दिया पार्डन सर। मैं उससे सोच रहा था घुमाऊं तो नहीं। अच्छा एक दो टर्म्स मैंने हैवी हैवी छोड़ दी, जैसे सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस, ये तो सब ठीक है, एडवांस एवियोनिक्स। तो मैं उसको बोलता हूँ सर इट्स अ सोफिस्टिकेटेड टर्म। कहता है आई नो इट्स अ सोफिस्टिकेटेड टर्म, एक्सप्लेन मी। ओके, तो मैंने बताया कि सर वो जो टूल्स वगैरह होते हैं वो सब डिजिटलाइज हो गए, ये सब थोड़ा बहुत करके आगे मैनेज कर लिया। बट वो मेरी जो रियलिस्टिक नॉलेज है ना, जैसे बहुत बच्चे डरते हैं यार इंटरव्यू में क्या पूछ लेंगे, नॉलेज बेस पूछ लेंगे, डिफेंस की पूछ लेंगे, वो उसने मेरे को मतलब मैम ये पूछा कि सहारनपुर से, उसने मेरे को बहुत इस चीज में बहुत दिल करा कि सहारनपुर से कमला नगर के बीच में क्या डिफरेंस है, हंसराज के बीच का, तुम्हें दिल्ली की लाइफ और सहारनपुर की लाइफ। एक मेरे को मैम इस क्वेश्चन पकड़ा कि तुम 2024 के बाद जब तुम्हें दिल्ली की लाइफ इतनी पसंद है तो तुम दिल्ली रह के प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे। जी कि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था इसका आंसर। बट फिर मैंने वही सहारनपुर में कि सर एक तो घर वाले हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा फूड है और अच्छा लग रहा है सर, मेरे मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ आउटपुट, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने हैंड मतलब बहुत इजीली टैकल करे इस बार क्वेश्चंस। ओके। सो एक एक ये चेंज तो इसकी बातों से समझ आया गोपाल की पहले वाले में ये क्वेश्चन से बचता था और नाउ ही इज रेडी टू फेस एनी क्वेश्चन। एंड ये तभी होगा जब आप खुद अपने साथ बैठोगे, अपनी एक नोटबुक बनाओगे और अपनी लाइफ को फेस करोगे कि आपने लाइफ में जो भी एक्शंस लिए क्यों लिए, आपकी लाइफ में जो भी हुआ वो क्यों हुआ। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इन एनी सिनेरियो। एम आई राइट गोपाल? टोटली राइट मैम, यही हुआ है। देन उसके बाद व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर होल एसएसबी? डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन तो मिल जाए वो तो है, बट समथिंग वेयर यू फील लाइक यार ये मस्त वाला मोमेंट था एसएसबी का अभी तक। मस्त वाला मैम मोमेंट दम्स मैम, बस 4th डे था, मतलब 3rd डे तक तो इंटरव्यू था, तो उस दिन तक तो मैं सोच रखा था कि भाई अब सिर्फ पढ़ना है, गेम वेम कुछ नहीं खेलना। 3rd डे के बाद तो मैं रुका ही नहीं, मैं खाना पिया भी, तो खाने पीने से एक चीज और याद आ गई। अब वेट मेरे को 67 से कम ही रखना था, तो वेट ना फर्स्ट डे ही हो गया था। अब रात में बनी थी सेवैयां, तो मैंने कहा भाई अब तो वेट हो गया जो होना था, अब तो मैं दबा के खाऊंगा। उसके बाद तो मैंने 3-4 दिन जो वहाँ पे मिला मीठा अच्छे से खाया, क्योंकि मेरे को स्वीट्स का बहुत शौक है। फिर मैम 4th डे क्या था, मैं आउट पास मिल गया था, तो मैं सहारनपुर का ही हूँ, देहरादून से बहुत पास, तो मैं अपने फ्रेंड्स वो लोग FRA वगैरह हम सब चले गए थे। मैम फिर दोबारा यहाँ पे खाने की जब बात आ गई, घंटा घर है देहरादून में, तो वहाँ पास में एक कुमार स्वीट शॉप है, बहुत पुरानी है और बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे चाट वगैरह डेजर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। सब फ्रेंड्स लोगों को वहां ले गया, अच्छे से खिलाया पिलाया उन्हें कि भाई हाँ अगर पूछ लिया कि तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था आउटिंग में कि तुम पास हुई हो तो ये बताऊंगा अच्छे से। हम फिर रात में हम लोगों ने, वैसे तो माफिया खेलते जनरली, दम स्ट्रास खेला मैम। और दम स्ट्रास हमने खेला नहीं है मैम, चिल्लाया है 1-1.5 घंटा, इतना और मजा आया ना मैम, इतना मजा आया है, ये एपिक था। और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तो मैम ये बताऊंगा मैम,
जैसे मेरे ग्रुप में 3 बच्चे रिकमेंडेड, हम 10 लोगों के ग्रुप में, हम्म। चेस्ट नंबर 30 था, तो उन्होंने अनाउंस करा चेस्ट 29। अब वो गैप ले लेके तो बोलते ही हैं, हाँ। तो मुझे लगा भाई साहब इसने मेरी सीट खा ली। तो यार ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स होना चाहिए था अगर डिजर्विंग है तो। मैंने कहा सोचा यार ये तो इसने मेरी सीट खा ली। बट फिर मैं तो उन्होंने बोला ना चेस्ट नंबर 30, मेरा हाथ सीधा यहाँ पे, और मैं किसी को फेस ही नहीं कर पाया ना, 1-2 मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गया, भाई मैं ही हूँ, मेरा भी दिन ऐसा आ सकता है। वो मोमेंट तो मैम जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को दिन में शायद 10 बार रिकॉल होता है, और वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा, बेस्ट। वेरी गुड। सो कॉन्फ्रेंस तक आएंगे, उससे पहले शिवम हमें ज्वाइन कर चुका है, सो लेट्स हैव एन इंटरेक्शन विद शिवम। शिवम की जर्नी कैसी रही, एंड शिवम शॉर्ट में बताना कि तूने कैसे सोचा और कैसे हमारे पास कुछ एक यंग एस्पिरेंट्स है, उनको क्या बोलना चाहेगा तू? पहले कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, और मैं बेसिकली गोपाल और अंजलि दोनों ने मेरे को भेजा था पर्सनली लिंक, तो मैंने ज्वाइन करा है क्योंकि राइट नाउ मैं जस्ट अभी मतलब जो आजकल चल रहा है इंडिया में वो सब लोगों को पता है, और मैं उसी सिनेरियो में चल रहा हूँ इस समय। आई एम द फॉरवर्ड। तो बस यही है कि मैं जस्ट अभी शाल लेने आया था, तो इसने भेजा, मैंने कहा ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ। बस अब मैं जाने वाला हूँ, तो अगर मतलब अ, अ, मेरा फोन आ चुका, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो ये है कि यार ये जो भी बोलती है यार सुन लो, क्योंकि मैंने भी इसकी बहुत डांट खाई है, ऐसा नहीं है। ये मेरी फ्रेंड है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने इसकी डांट खाई है और अभी भी खा लेता हूँ कभी कभार जब भी हम मिलते हैं, और लास्ट और आगे भी होता रहेगा। तो यार मेरा ये बेसिकली यही था कि सोचा था प्लान स्टार्टिंग से कि मेरे को आर्म फोर्सेज ज्वाइन करनी है। तो 12th में एनडीए दिया, एक बार नहीं हुआ, फिर एफकेट दिया। एफकेट के रिटर्न निकल गए थे, इंटरव्यू में मैं खुद ही मतलब मन नहीं करता था इंटरव्यू देने का सही से। तो एक बार तो मैं खुद ही इंटरव्यू वाले को बोल के आ गया था, उसने आंसर पूछा था, मैंने कहा सर मेरे देने का मन नहीं है, मैं आ गया था बाहर एफकेट के इंटरव्यू में। और फिर मैंने पीएसएस भी देना शुरू करे थे, तो 2-3 बार मैंने दिए, उसमें प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने इसको डिस्कस करा, हम लोग मिले भी थे इस टॉपिक पे लेकर कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमें और ये साथ में एक जगह साथ में थे। तो वहां से फिर हम दोनों की स्टार्टिंग में हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे, और स्टार्टिंग हमारी लड़ाई से ही हुई थी वहां पे, वो भी ग्रुप डिस्कशन से, राइट। जीडी, इफ आई एम यस। कि इसको भी अपने पॉइंट देने, मेरे को भी अपने पॉइंट देने, और ये बोल रही है तो फिर वो चुप नहीं रहेगी, और मैं बोल रहा हूँ तो मैं चुप नहीं रहूंगा, यही चलता था हम लोगों में। तो हमारा टीचर था, उसने कह दिया था या तो कोई मत बोलो या एक एक करके बोलो, लास्ट में ये हो जाता था। फिर उसके बाद जीडी हुआ, मतलब ऐसे ही हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ। फिर पर्सनली मैंने इसको मैसेज खुद से करा था कि मेरे को ऐसे ऐसे, क्योंकि शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एज वेल, तो शी इज अ हब ऑफ नॉलेज। सो मैंने इससे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो फिर इसने मेरे को बताया 2-3 चीजें, मैंने उस पर काम करा। फिर इंग्लिश मेरा थोड़ा, वर्बल एक्सप्रेशंस मेरे वीक थे, स्टिल वो अभी भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वहां पे भी मैंने काम करा। फिर जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ, मैंने इसको मैसेज करा कि फाइनली मैं हो गया। 6 अटेम्प्ट मेरा थे, जिसमें से 5, 5th, 3rd, 4th, 5th को हम दोनों ने साथ में, मैंने मतलब इसके साथ शेयर करे थे अपने। फिर ये पूछती थी कि कहाँ कर दिया, तो लास्ट अटेम्प्ट जब मैं देने जाने वाला था, उससे एक से एक अटेम्प्ट पहले 5th वाले में मेरी और इसकी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। इसने मेरे को बहुत अच्छे से रख के सुनाया था, 1 हफ्ता, 1 आवर कोई इंसान सुन सकता है, तो वो मैं था इसका। बट हाँ ये था कि वो मेरे फेवर में बोल रही थी, तो इसलिए ठीक है। 6th अटेम्प्ट में जब जिस दिन मैं रिकमेंड हुआ था, मैंने घर पे बताया था, देन उसके बाद मैंने इसको इलाहाबाद से मैसेज करा, फाइनली आई एम रिकमेंडेड। ये खुश हुई थी। फिर जिस दिन मैं कमीशन हुआ, इसको इसको बताया, मैंने कहा हाँ मैं हो गया। तो बस यही है कि ये बोलती है तो सुन लिया करो यार, ऐसा नहीं है ये बेकार, ठीक है, औरों के लिए अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी बेकार दोनों है, बट ठीक है, हम लोगों का बॉन्ड अलग है, बट तुम सब लोग सुन लिया करो इसकी यार, क्योंकि इस पे नॉलेज है, और सबसे बड़ी बात इस पे एक्सपीरियंस है, और वो भी 3 और 4 टाइम्स बैक टू बैक रिकमेंडेशन। सो दिस इज वन ऑफ द बिग फैक्टर कि ये तुम लोगों के साथ है। तो जितना ये बोलती है, अगर उसको ब्लाइंडली भी कर लोगे तो 70 to 80% एसेस भी अपने में निकल जाएगा। एंड एक्चुअली ज्यादा शिवम के साथ ऐसा सीन था ना कि हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, सो मेरी भी क्लास में कुछ बच्चे आते, प्रीति एंड ऋषभ, सो दे ऑलवेज बी इन द डॉग फाइट जीडी में कि यार नहीं हमें करना है। तो सेम वाज विथ मी एंड शिवम। तो वहां पे ऐसा होता था कि जब मैं बोलूँ तो इसे बोलना है, और जब ये बोले तो मुझे बोलना है जीडी में। सो वी वर लाइक कि यार वी ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट, बट एक कि यार उससे अच्छा बोलना है, तो दैट वो पॉजिटिव। सिर्फ वही वाला कॉम्पिटिशन हम लोगों का, कॉम्पिटिशन मतलब लड़ाई वो वाली होती थी,
अच्छे पॉइंट्स वाली, वैसे वाले हम लोगों के ऐसे कुछ नहीं है। हाँ तो एंड देन एकदम वी वर आल्सो इन जर्नी टू एकेडमी ना, जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे, शुभम और हमारे सारे फ्रेंड्स वो लोग भी वहीं से रिकमेंड होते गए। फिर एक बार हम लोग मिले भी थे तो वहां पे भी यही हुआ था कि हम लोगों ने उस टाइम यही डिस्कस करा था जब हम मिले थे कि नेक्स्ट एसएसबी में क्या अच्छा करना है मेरे को। हाँ एक डेढ़ हम लोगों का मीटअप बहुत छोटा था, बट उसमें हमारी कोई इधर उधर की बात नहीं, ओनली बस नेक्स्ट एसएसबी में क्या इम्प्रूव करना है। तो and इसके Shivam लिए was like कि Dao, I decided that I will change my stream, I'm going to be a teacher and all. So मैंने तो बोला भाई क्यों इतने साल, ये लास्ट अटेम्प्ट है ना, go like a fresher, that was my only sentence if you remember. अटेम्प्ट तो और भी थे, गोपाल को ही पता अटेम्प्ट और भी थे, पर लास्ट अटेम्प्ट जब मैं देने जा रहा, मतलब उसको लास्ट प्रिपेयर कैसे करा था मैंने, ये गोपाल को पता है कि जब मैं जा रहा था तो वहीं से जा रहा था। अटेम्प्ट तो और भी थे, मैंने कहा अब नहीं देने, क्योंकि घर वालों की तरफ से हो गया तो बहुत अटेम्प्ट दे लिया, अब कुछ और। तो बस लास्ट उसको कन्विंस करके आया था घर वालों को। और एक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल कि हम लोग सीज फायर, वो लोग सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, तो हम लोग सीज फायर करने जा रहे हैं कल। ceasefire में 2-3 चला दियो. यार नहीं, आज का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, आज का बेसिक पर्सनली। Okay. So हाँ what is the last advice you will give to all those aspirants who are preparing? Sure. यार, फर्स्टली न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, जो इसने मेरे को बताया था। माना सब तो सोच रहे होंगे कि सर मैम की वो क्या बोलते हैं, कोचिंग का प्रमोशन करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोचिंग इसने अब चलाई है, मैं इससे लास्ट 3-4 ईयर से कांटेक्ट में हूं ना, राइट। हाँ. हाँ और तो गोपाल बस हंस रहा है क्योंकि गोपाल ने नहीं पढ़ी थी, तो गोपाल को पहले सुनाना. नहीं, गोपाल मेरे को पता और रीजन से भी हंस रहा है। हम्म. नहीं भाई नहीं यही है ठीक है, तो 3-4 ईयर्स मतलब न्यूज़पेपर बेसिकली फॉलो करो, और एक ये है कि अपने चीज़ों को पहचानो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स। आई नो माई सेल्फ कि मैं कहाँ कहाँ वीक हूँ और कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ। तो स्ट्रॉन्ग, और ये गोपाल को भी मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग जहाँ पे है वहाँ से अच्छे बना, और उस पर बार बार मतलब उसी को रिपीटेशन में काम करते रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, लेकिन वीक और वीक हो जाएगी क्योंकि उसको टाइम नहीं देगा। तो स्ट्रॉन्ग वालों को तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम कितना कर सकते हो, तो वीक वालों पे फिर वर्क करो, जिससे कि अगर एसएसबी नहीं तो और भी बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, और नहीं तो लाइफ में और सारे बहुत सारे फेजेस होते हैं कि कहीं ना कहीं फिर ये वाली चीज़ें काम आती हैं, एडवाइस वाले। इवन मैं अभी न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ, इवन मैं आज सुबह मैंने एक ऐसी चीज़ करी है, स्टिल उसके बाद भी मैं पढ़ने के बाद करने के बाद आराम से बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो मैं आज भी बैटल फील्ड में होकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, Wow. ठीक है। और दूसरा ये कि अपने आप को पहचानो, सबका रिस्पेक्ट करो, फ्रेंड्स वगैरह बनाओ या कॉन्टैक्ट्स बनाओ, सबसे बड़ी बात कॉन्टैक्ट्स बनाओ, एसएसबी हो या ना हो, बट एंड द एंड ऑफ द डे अगर मैं दिल्ली में जाऊंगा तो मैं अंजलि को कॉन्टैक्ट करूंगा कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। या कहीं किसी और सिटी में जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि मैं यहाँ पे हूँ, अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट्स बनाओ, सबसे बड़ी बात। फौज में आना ना आना इस मैटर नहीं है करता, लेकिन उससे आपका सर्किल कितना बड़ा हो रहा है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी के होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं सबसे। ये Okay, so one last question, Shivam. हाँ Communication is always a challenge and barrier in SSB. तो तूने उस पे कैसे काम किया? And जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुशीला, उत्कर्ष, they are facing communication skills as a barrier क्योंकि हिंदी मीडियम से आते हैं, कभी exposure नहीं मिला even though they are in English medium. So मैं उन बताता लोगों हूँ। के लिए कैसे वो काम हाँ कर मैं सकते बताता हूँ, देखो इस कम्युनिकेशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही था, साथ में मैंने मिरर प्रैक्टिस भी करी थी। एंड द थर्ड इज थिंग, मेरा जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हूँ ना, मेरा 17th मिनट में मैं अपने इंटरव्यू हॉल से बाहर आ गया था। अब बोलोगे कि ऐसे टाइम कौन नोट करता है, मैं लिटरली टाइम नोट करके जा रहा था। इस बार मैंने कहा लास्ट अटेम्प्ट था तो सारे जो हरकतें होती है ना सारी कर लो, कि जीटीओ को भी उल्टा जवाब दे लो, इंटरव्यू का भी टाइम नोट कर लो, ये करा था। मैं 9:10 में बाहर गया था, अंदर गया था, और 9:27 में बाहर आ गया था, मेरे को आज भी याद है। तो क्या अब पूछा मैंने था इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने ऐसा? उसने मेरे से गुस्से ये पूछा कि इतने सारे अटेम्प्ट हो गए क्यों नहीं पास हुए। मैंने उसको हिस्ट्री खोलना शुरू करा, वो समझ चुका था कि ये भरा बैठा है, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया दूसरे अटेम्प्ट के बाद। Okay. देन उसने फिर मेरे से जियो पॉलिटिक्स में आया, तो यू नो जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस हाँ. क्या ये है, तो उसने मेरे से वो पूछा था कि ब्रिगेडियर रैंक था इवन वो, सो ही आस्क्ड मी दैट कि प्रोक्यूरमेंट क्या क्या है इंडिया के। उन्होंने मेरे से 3 पूछे थे, मैंने 5 बताए विद कैलिबर विद कंट्री। ही वाज कि रियली ये भी आने वाला है, मैंने कहा यस सर, स्पेशल फोर्सेस पे आने वाले हैं। फिर उसने क्वेश्चन स्किप कर दिए थे बीच में से, मतलब क्वेश्चन ऐसे स्किप करते जा रहे थे, मैं आंसर देना शुरू कर रहा था उससे पहले वो समझ चुके थे कॉन्फिडेंस के वेल प्रिपेयर्ड है और इसको नॉलेज है। फिर एंड ऑफ द डे
हार्ड को रिपीटेड से बंदा पूछता है PIQ में से हर पार्ट्स में से 2-2 क्वेश्चन, क्योंकि आज तक मेरे को नहीं लगता कोई PIQ में से ऐसे हार्ड को रिपीटेड से पूछते होंगे। मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, जबकि उस पर लिख रहा है फिर भी विच प्लेस यू बिलोंग, व्हाट एक्टिविटीज यू डिड, व्हाट इज योर हॉबी, इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड व्हाट विल यू डू। मैंने कहा सर बहुत सारे ऑप्शन है, मास्टर्स इसमें कर रहा हूँ, नहीं हो जाएगी तो उसमें कर लूंगा। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं सर। कहते विच रेजिमेंट यू वुड लाइक टू चूज, मैंने बता दी। कह रही एनी स्पेसिफिक रीजन, वो भी बता दिए। अब वो उनको मैंने उतनी ही शॉर्ट आंसर दिए जितना वो चाहते थे। अगर मैं ज्यादा बढ़ाता तो फिर वो उसमें घुसते। मैंने कहा इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है इस बार। तो मैं उसी माइंड सेट से गया था कि आंसर अपने छोटे ही रखने हैं, ज्यादा नहीं बताना। वो पूछेंगे तो बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पूछे नहीं तो फिर मैंने बताने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जो आंसर दिए थे उसी में 2-3 चीज ऐसे हाईलाइट कर दी थी कि वो समझ चुके थे। बट ये था कि मैंने अपना इंटरव्यू खुद चलाया था, मैं खुद कह सकता हूँ, पूरा करंट अफेयर बेस। Okay. So I hope that you all get an idea कि आपको prepare कैसे करना है. But before cut short, we have our interview class after this. तो चलो यार ठीक है, निकलता है ना। ओके बाय, थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट। नहीं आज गोपाल का एक वो क्वेश्चन रह गया अभी भी। गोपाल कॉन्फ्रेंस नहीं यार पूछो, आप लोग कंटिन्यू रखो, ठीक है। हाँ शिवम, thank you so much for coming, and most important यार we have that, we are proud on you that you are still serving on the and reading newspaper. You are just giving that motivation कि यार majority of people are not even working and still they are not reading, so please get that motivation. न्यूज़पेपर तो मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं कल की न्यूज़ बता सकता हूँ कि क्या क्या आया था अभी भी, ठीक है। Yes. ओके बाय, That is the motivation. Thank you so much. Shivam. Thank you so much. Okay, Gopal. So coming to the last question, and then we will open our, interacting sessions with our, we will not say audience, our, young aspiring minds. So Gopal, conference कैसी गई थी? And conference के बाद जब chess number announce हुआ, so what was that feeling? मैम इसमें हल्का सा ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसते सार ना मेरा मन तो खुश हो गया था। मतलब मेरा क्या, सारे लड़कों का मन खुश हो गया होगा। बात समझ गई क्यों हो गया था। तो बोर्ड प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछे थे, ओके गोपाल, व्हाट अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एग्जामिनेशन व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। और मेरे सीधा सर लास्ट वीक मैंने एक कॉलेज में कैट दिया था, तो मेरा लास्ट वीक एक कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम है और नेक्स्ट वीक मैं उसमें एडमिशन लेने वाला हूँ 5 मई। सिंपली बोला, उसने बोला ओके गोपाल, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और वही पूछा कि मैथ्स में कुछ इशू वगैरह है, तो मैंने कहा नहीं सर सब फैंटास्टिक है। मतलब वही चेक करना चाहता कि तुम, हाँ क्लियर कट था। We will literally wish for your higher merit, Gopal. यस मैम, बस पर लड़कों को मैम सिर्फ एक ही दुख था क्या? कि लड़कों को सिर्फ एक ही दुख था मैम। मतलब ये मैंने कॉन्फ्रेंस में बच्चों के मुंह से सुनी है कि भाई डीएसओ की जगह ना साइक वाली मैडम आके एक बार बोल देंगी ना कि क्या क्या नाम है, दुख नहीं होगा अगर हम कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गए। मैंने कहा भाई वो विंग कमांडर करिश्मा तन्ना मैम की बात कर रहे हो? फिर नहीं मैम, वो तो फर्स्ट फ्रेम में थी, ये डीआईपीआर की साइड से थी। ओके, ठीक है। सो मतलब यू ऑल हैड क्रश ऑन हर मैम डे 1 नाइस। डे 1 एंड 1 डे ऑन कॉन्फ्रेंस। अच्छा। फिर बेचारे लड़के 3 दिन मैम सूखे सूखे रह गए। अच्छा, तो कितने रिकमेंड किए? मैम 15 रिकमेंड किए। कितने की रिपोर्टिंग थी? 202 या 203। ओके, स्क्रीनिंग कितने किए थे? 61। ओके, 60-70 का तो देहरादून का रहता ही रहता है। सो गोपाल, व्हाट वाज द वन लास्ट एडवाइस यू विल गिव टू ऑल दोस हु आर गोइंग टू अपीयर इन एसएसबी? देखो यार, रिटर्न में तो सब एफर्ट्स डालते ही हैं, है ना। एसएसबी को इस बार मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ना अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है ना और आपके अगर एक्शंस जो है आप बोल रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और मतलब उसके पीछे प्रूफ्स हैं, खासकर इंटरव्यू में, और आप हल्के से बोल्ड हो ना तो आप निकाल लोगे। मतलब कुछ कुछ पॉइंट सही होते हैं कि हाँ यार अगर दिखाना पड़ेगा कि हाँ स्पोर्ट्स में अच्छा है या थोड़ा एडवेंचर एक्टिविटीज है, ये सब तो दिखाने पड़ेगा भाई, वहाँ स्टूडियस बंदे की जरूरत तो है नहीं। तो जो कर रहे हो उसको देखो कि और बेटर कैसे कर सकते हो, उसके अलावा पर्सनैलिटी देखो, मतलब कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स किसी अच्छी चीज से जुड़ जाओ। मतलब मैम ने मेरे को इतना बोला था कि यार अभी तेरे पास टाइम है तो कुछ ट्रैकिंग वगैरह करा, मैंने कहा तो वो तो नहीं कर पाया था, बट हाँ वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है। उसमें आप ये दिखाओ कि आप एक अच्छे इफेक्टिव लेवल पे हो। जैसे मैंने ये दिखाया था कि मैं पैराग्लाइडिंग किया था,
6 लोगों के साथ गया था, सब मेरे फ्रेंड्स थे। मैंने उसमें हर एक छोटी से छोटी डिटेल नोट करी और बताई है वहाँ पे कि सर क्या खर्चा था, कहाँ से गाड़ी हमने कितना उसका ड्राइवर, मतलब बिल्कुल डीप नॉलेज। तो ये दिख रहा था ना कि यार कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो है ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा अवेयरनेस कि आप कहीं नहीं जा, Observational, yes. ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस कि आप 6 लोगों के बीच में बैठे हो ना, तो आप अवेयर कितने हो। उसके अलावा कितना इनिशिएट कर रहे हो इन सबके अराउंड, एक कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हो अपने लोगों के बीच में। तो एक पर्सनैलिटी अच्छी होगी ना, तो हाई एंड फास्ट जो नॉलेज होती है वो भी। पर जैसे भैया ने बोला था कि उनका डिफेंस पार्ट और जियो पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग था। मेरे से नॉलेज पार्ट में सिर्फ 2 ये पूछा, 2 इंटरनेशनल 2 नेशनल। मैं इस बार 12-13 डिफेंस, 8 और 7 नेशनल इंटरनेशनल प्रिपेयर करके गया था विद कि अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए तो भी मैं फट-फट आंसर बोलूँगा। तो वो मेरे से ऑलरेडी मेरे सीआईक्यू पीआईक्यू से इतना ज़्यादा खुश हो चुके थे, उन्होंने पूछा ही नहीं। उसके अलावा देहरादून में क्या है कि जो वेटिंग हॉल होते हैं वहाँ पे ना एक पोस्ट लिखी होती है एओपी, एओपी। उसकी ना वो कभी-कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं बच्चों से। तो मैं उसकी फुल फॉर्म तक याद करके चला गया। मैंने कहा यार अगर ये पूछ ली तो क्या होगा? कुछ नहीं, सीआईक्यू पीआईक्यू स्ट्रांग है, तुम्हारी बातों में दम है ना, तो हो जाएगा। और रिग्रेट कुछ मत रखना कि यार पास्ट कॉन्फ्रेंस में ऐसा हो गया था या एजुकेशन में कुछ लैक हो गया। भाई प्रोग्रेसिव रहो, देखो कि एक और बेटर क्या कर सकते हो, अभी जो टाइम है इसमें देखो। और बैकअप ऑप्शन तो भाई ज़रूरी है ही, क्योंकि Okay. एसएसबी मेरे को इससे पहले तक अनसर्टेन लगता था, बट अब मेरे को लगता है कि यार बहुत ईज़ी है, Huh. माइंडसेट बदलता है। Okay, so in cut short, Gopal wants to say यार give your best. आपके एसएसबी में भी कुछ चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होंगी, कुछ चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, बट डोंट डाउट योरसेल्फ, गिव योर बेस्ट, लास्ट तक भी हार नहीं मानना है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि इट्स एन ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है कि ठीक है आप नीचे भी जा रहे हो बट आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर आप ऊपर जा रहे हो तो माइट बी यू आर हाई हेडेड और ओवर कॉन्फिडेंट, और यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग एंड चेरिश विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स इट। So at last, I just wish you hope for your merit, and simultaneously if anyone wants to ask any question with Gopal related to any doubt, feel free to ask. Okay, let's raise your hands. Let's start with Utkarsh first. Hello, ma'am. Hi Utkarsh. First of all, congratulations, Bhaiya, for your recommendation. गोपाल, थैंक यू। भैया नहीं हूँ भाई, मैं भाई हूँगा। भैया मैंने अभी तो अपना मतलब अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास की है अपनी, लेकिन मैंने 12th तक तो स्पोर्ट्स खेला था, लेकिन अपने ग्रेजुएशन में स्पोर्ट्स छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड था, तो वो लोग ज्यादातर क्रिकेट ही प्रेफर करते थे, और मेरा स्पोर्ट्स था वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। और मैंने मतलब ज्यादा ये स्टेज वाले डिबेट या फिर और किसी में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मेरा फियर है, ये स्टेज फियर बोलो या फिर कम्युनिकेशंस का फियर है। तो हाउ टू टैकल दैट, और कोई डेली एक्टिविटीज या फिर हैबिट्स जो मैं इंक्लूड करूँ अपने लाइफ में, ताकि ये फियर जो है मेरा वो ओवरकम हो जाए। सो देखो यार, कॉलेज में अगर तुमने स्पोर्ट्स नहीं करा तो कुछ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है ऐसा, मतलब जो स्ट्रेंथन करेगी, हाँ भाई एजुकेशन के अलावा भी कुछ करा है, कुछ कोर्स या फिर कुछ सर्टिफिकेट, कुछ किसी भी चीज में, या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कुछ कहीं ट्रिप वगैरह पे गए हो, कुछ ऐसा है? बेसिकली मैंने यहीं से कर लिया था, अपने जो मेरा होम टाउन में ही कॉलेज था, हाँ, तो यहाँ पे इतना ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ है नहीं। ओके। सो यार देखो कि ना तुमने कॉलेज स्कूल टाइम तक तो स्पोर्ट्स खेला है, ठीक है। कॉलेज में जनरली बच्चे बिजी हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स में इतना टाइम नहीं दे पाते। तो सिंपली लिख दो कि हाँ कैजुअली प्ले करा है, रिक्रिएशनल बैडमिंटन प्ले, बैडमिंटन वगैरह डाल सकते हो जो डेली उसके स्पोर्ट्स होते हैं। टेबल टेनिस दिखा दो कि हाँ कॉलेज में था, खेल लिया। और अगर तुम्हारे पास कॉलेज में और कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो दिखा दो कि किसी चीज में वॉलेंटियर किया, कुछ भी, जैसे सॉर्ट ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप था तो उसमें तुमने सिर्फ वॉलेंटियर कर दिया, या फिर मैं कुछ गोपाल की बात को कंटिन्यू करते हुए, सॉरी गोपाल टू इंटरप्ट, एक चीज बोलना चाहूंगी। उत्कर्ष, you already graduated? यस मैम। Okay, so now you are applying for post graduation or something, or you are preparing totally for defense? मैम आई एम प्रिपेयरिंग टोटली फॉर डिफेंस, नॉट So अप्लाइंग फॉर still there पोस्ट is a ग्रेजुएशन। lot of things which you can start now, like running, marathon. Okay, this is also a part of sports. Start going, and either if you have that availability of joining and playing with academy, you can go start playing badminton, basketball, anything. You have to go outside. That is the only condition.
राइट? ग्रेजुअली यू विल डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स. मैराथन होती रहती है. नेवी ने अभी इतनी बड़ी मैराथन कराई थी दिल्ली में. इवन दो जिस भी स्टेट में हो, है ना, स्टार्ट डूइंग थिंग्स. दैट इज द ओनली थिंग. एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, आप बाकी चीजें स्टार्ट करो. रीडिंग बुक स्टार्ट कर सकते हो, डिबेट अभी स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक. तो छोटी छोटी चीजें विच यू कैन स्टार्ट नाउ, इवन दो इफ यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी और माइट बी योर कॉलेज वाज नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ. राइट? कंटिन्यू गोपाल. ओके. उसके अलावा अपनी पीआईक्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ अच्छी हॉबीज दिखा सकते हो. जैसे एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग है ही. अगर तुम्हें जैसे कुछ क्रिएटिव चीजें करने का शौक है, स्केचिंग, ड्राइंग या कुकिंग या फिटनेस का ही शौक है, वो ही दिखा दो कि मैं गाइड कर देता हूँ, कोच कर देता हूँ. थोड़ा बहुत अगर पोर्ट्रे करोगे ना तो भी चल जाएगा. बट हाँ, उसके पीछे गोपाल ने भी बोला था ट्रैकिंग एंड ऑल. तो ये सारी चीजें तो यार आप अपने फ्रेंड के साथ रिक्रिएशनल पे जा सकते हो. आफ्टर गिविंग एग्जाम भी आप जा सकते हो. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच यू आर एंथुसियास्टिक एंड यू नो हैव दैट ज़ील टू एक्सप्लोर थिंग्स. दैट्स इट. वो है. मतलब Yes, आप sir. ये दिखाओ, कवर अप करो कि ना जो आपने खाली टाइम है ना, मतलब उसमें कुछ कर रहे हो, इफेक्टिवली कर रहे हो. सिर्फ ये नहीं कि बस वेट करो एक अपॉर्चुनिटी का कि वो जिस दिन मिलेगी उस दिन से मैं स्टार्ट करूंगा. नहीं, वो मिलेगी, अच्छी बात है. बट हाँ, ऑलरेडी मैं एज अ पर्सन इन लाइफ अच्छे से अपनी लाइफ को और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ. उसमें कुछ कुछ चीजें दिखा सकते हो. नेट पे देखना कि अच्छी हॉबीज क्या हो सकती है, अच्छी एक्टिविटीज क्या हो सकती है, या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स किस किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं. दिखा दो कि यार मैंने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करा है, या फिर मैंने यूट्यूब से ही लर्निंग कर ली, कुछ भी सीख लिया. तुम्हारी वहां नॉलेज चेक होगी इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह. ठीक है, वो उसको अभी भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. इवन इफ यू आर गुड इन राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स. ठीक है, आप www.wordpress.com पे जाकर लिख सकते हो. सो यू विल गेट अ गुड रीडर्स. इवन तो आपने अभी तक नहीं किया, अब स्टार्ट कर सकते हो, है ना. टीचिंग Yes, दिखा sir. सकते हो. टीचिंग के दो प्लस पॉइंट हैं कि आप एक तो एक्सप्रेसिव हो, कंट्रीब्यूटिंग हो, प्लस आप अर्न भी कर रहे हो. वो भी अच्छा. आप फाइनेंशियली Good. डिपेंडेंट नहीं हो पेरेंट्स पे, तो ये भी अच्छा पॉइंट है. आप इसको भी सोच सकते हो. ठीक है, तो जो गैप्स है ना उसको फिल करो. मतलब ये मत सोचो कि यार क्या हाई फाई है, बस गैप को फिल करो जो And पर्सनैलिटी जो में. हो गया. What you can do in future, focus on that. Okay, any other questions? Okay. Mamta? हेलो हाँ ममता. मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि गोपाल ने खुद से कैसे प्रैक्टिस करी. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन इन हो गए थे, तो मतलब स्टोरी राइटिंग के इन सब की, जैसे अभी भी आप हमें बताते हो अपने लेवल पे, तो हम उतनी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन खुद से डेली बेस पे कितनी प्रैक्टिस करेगी. शायद ममता ने लेट ज्वाइन किया है, बट गोपाल ने बताया था कि उसने इनिशियली फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स तो वो गया था ऐसे, देन उसने आफ्पा भी गया था, देन ही वाज कॉन्फ्रेंस आउट, फिर उसने पर्सनल गाइडेंस भी लिया जहाँ पे यू नो 1-on-1 लाइन से उसने फीडबैक लिया. गोपाल, यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन कवर विद इन 2 minutes so that we can take the next doubt. डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मैम भी कराती हैं 7 to 8. उसको ज्वाइन कर लो. और सबसे बढ़िया बात, कहीं और करोगे ना मतलब फीडबैक नहीं मिलेगा. और जो मैम का फीडबैक होता है ना, वो पेड सेशंस से भी बेटर होता है. ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस है यार. उसमें उसमें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी कि तुम्हारी थिंकिंग है. और वहां जब 4 लोग और स्टोरी बता रहे हैं ना, तो उनकी थिंकिंग भी दिखेगी. तुम उसको थीम्स को नोट कर सकते हो, अच्छे अच्छे एक्शंस लिख सकते हो. क्योंकि कहीं ना कहीं टैट की स्टोरी के लिए नॉलेज पार्ट चाहिए. ऐसा नहीं है कि स्पॉन्टेनियस आपको सब कुछ एकदम से आ जाएगा ऑन द स्पॉट. ठीक है, तो इस चीज पे ज्वाइन करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो. सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है टैट के लिए खासकर. आइडियाज भी आएंगे, एक्शंस भी आएंगे, उसके अलावा फ्रेमिंग भी होगी एक स्टोरी की. यही है. Okay. Next is Rishabh. हाँ भाई, क्या हालचाल? अरे सर बढ़िया, ऑलरेडी रिकमेंडेड. अबे सर क्या होता है? भाई मिठाई कब खिला रहा है ये बता तू. मेरे को डाउट वाउट नहीं है, मिठाई खानी है मेरे को. भाई जिस दिन मेरिट में नाम है, मिठाई छोड़ो, दावत होगी. No, Rishabh don't have दावत? this right to eat, you know, sweets, because दोनों की तरफ से अभी तो मिठाई नहीं आई है मुझे. मैम अरे यार, मेरा तो मेरिट में जिस दिन होगा उस अरे दिन. अंजलि, याद नहीं है क्या ये भंडारा लगाने का सिर्फ करते हैं एकेडमी से रिकमेंड होने से. शिवम, शुभम, विभव सब भंडारा लगा के पहुंच गए, और तक पहुंच गए. ये बंदे भंडारा लग ही रहा है अभी तक. Seriously, देंगे. what happened when we were part of, you know, Journey to Academy, तो वहाँ पे ना जो रिकमेंड होता था वो कहता था भंडारा लगवा रहे, प्रसाद क्या मतलब मिठाई क्या, भंडारा लगवा रहे, और भंडारा आज तक नहीं लगा ना मिठाई है. तो that was the thing Sushila is quoting right now. हाँ ऋषभ, कंटिन्यू. मैं कह रहा हूँ कैसा लग रहा है भाई ये बता तू. क्वेश्चन नहीं है मेरे को. भाई 1.5 साल बाद ना, मतलब 1.5 साल क्या, मतलब काफी टाइम बाद नॉर्मल लाइफ जो होती है ना, वो बच्चे वाली लाइफ
छुट्टियों वाली, गर्मियों की छुट्टियों वाली, देर से उठना फिर खेलने चले जाना, मस्त खाना पीना एंजॉय करना, वो जी रहा हूँ। और ये मेरे लिए एक इटसेल्फ अचीवमेंट भाई, बता। वरना मैं अगर कुछ मस्ती भी कर रहा होता ना, मेरे को लगता था यार इसकी जगह पढ़ लेता ना, या इसकी जगह कुछ और कर लेता तो सही रहता, अच्छा रिग्रेट नहीं होगा। टाइम देखने की इच्छा नहीं हो रही भाई, और पहले मैं टाइम को लेके यार इतना टाइम हो गया यार, ऐसे ही ये कर लेना चाहिए था। गोपाल को सुनते हो कितना जेन्युइननेस दिख रहा है ना, कि मतलब कितना हाँ, रियल बोल रहे हैं। दिल की बातें बाहर आ रही भाई। अब तो हो गया है, अब तो हम कुछ भी कर लेंगे, अब बस हो गया है यार अभी क्या है ना वो भाई। ठीक सेलिब्रेशन, है। अब अभी मैं गोपाल वाज लाइक मैं 12 मेडिकल्स घंटे हो भी गए? सो जाऊं तो कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। मैम घर वाले कुछ नहीं कह रहे, उनके सामने मैं 60 दिन पूछ रहा हूँ, वरना पहले भाई किताबें भी खोल ले, मतलब कुछ वैसे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट फिर भी एक लगता था ना कि यार अब ये टाइम थोड़ी रह गया है कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें। अब घर वाले ठीक है नहीं नहीं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही खुशियां सुनाते रहो, सबको ऑल दी बेस्ट, यार, ये तो और मैम लगे रहो भाई। मैम की तारीफ है भाई, ये देखो थैंक यू सो मैं मच। तो सबकी मैं तो इतने। मैम की कर रहा हूँ आज। मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, मैं तो वही, थैंक यू वेरी थैंक ब्यूटीफुल मैम। भाई मैम हमेशा ही लगती है देखने का नजरिया, पर आज ज्यादा लग रही है अच्छा मेरे को ज्यादा पर्सनली। पर्सनली। मारना चलो मत मेरे को बस, मारेंगे ओके। मेरे को पकड़ के थोड़ा। रोस्ट नहीं करना था। आई जस्ट वांट टू से एनीवन हैज एनी डाउट, बिकॉज इंटरव्यू वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, फिर वो बोले कि मैम आप लेट आते हो। चल भाई, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से चलिए, करो। सुशीला हाँ, ऑल दी बेस्ट, सबको ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, थैंक no यू। one has doubt, shall we wind up? यस मैम। Okay, so one announcement I have, even though if you want to connect with Gopal, you can connect freely. ठीक है? Any doubt, anything if you want to share with Gopal, and Gopal, please help others also so that they can also achieve their dreams. That is what's डेफिनेटली special in this